हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज है डे 29 अपने पाइथन क्लास का। माय नेम इज अभिषेक एंड टुडे इज द डे 29 ऑफ आवर पाइथन क्लास। तो आज हम समझने वाले हैं पाइथन में इटरेटर्स के बारे में। वी विल लर्न टुडे अबाउट पाइथन इटरेटर्स। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है। जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक कंप्लीट नहीं किया है वो डे 25, 26, 27 और 28 को कंप्लीट कर लेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आगे समझने के लिए। सो द पर्सन हु जॉइंड न्यू हेयर और इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड येट, यू शुड complete the day 25, 26, 27 and 28. This is important for learn more about object oriented programming in our next sessions. So moving on today class. So we will learn about Python iterators. You can see what is the Python iterators here. An iterator is an object in Python that can be traversed through containing a countable number of values. Notice this countable. Okay, so iterator is always countable, has a countable number of values. So in this session we will also create an iterator from scratch. It implements the iterator protocol with the method iter and next. Okay, so we will use both the method when we will create an iterator. तो सबसे पहले समझते हैं पाइथन में इटरेटर्स क्या होते हैं। इटरेटर जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है क्लास का। सो वो हर एक वैल्यू से होकर गुजरता है और वो काउंटेबल होता है। सो यहाँ पर काउंटेबल वर्ड पे ध्यान रखना। इटरेटर जो होता है वो काउंटेबल होता है और वो हर एक वैल्यू को वन बाय वन इटरेट करता है। सो पाइथन में इटरेटर बनाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें हमें इटरेटर बनाने के लिए इटर और नेक्स्ट मेथड का यूज करना होता है। आगे हम इन मेथड्स का यूज करके समझेंगे कि हम कैसे इसको बना सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इटरेटर एंड व्हाट इज इटरेबल। ओके, बोथ आर सम डिफरेंट थिंग। सो यू हैव ऑलरेडी सीन सम लिस्ट, tuple, dictionary and set. These all are iterable. So iterable meaning one by one you can access all the item. All the item is countable. Remember this thing. Iterator is countable. So list, tuple, dictionary and set we have already seen in our previous sessions. These all are iterable containers from which you can get an iterator. Okay, so from these containers like list, tuple, dictionary or set, from all the items you can get access an item one by one. That is called iterator. So those objects have an iter method to receive the iterator. So actually what is the iterator? Here is an example you can see here. When you are defining a tuple here, so when you are using the for loop, this fruit variable contains your tuple, this fruit variable called iterable. It means it has some item that can be iterated over. This fruits variable come here and inside this fruits variable one by one accessing by this item, this fruit variable inside for loop. Okay, so over this iterable, this fruit variable accessing one by one item from this fruits variable. Okay, so it's accessing one by one item inside this and printing one by one this. So when it accessing one by one, it's internally calling some method like iter and accessing the next item inside this fruit variable automatically. Okay, so when this get an item, this item called iterator. So this fruits variable is iterable and one by one this fruit variable is getting item that is called iterator. So it should print all the fruits one by one. Here is the word apple. Okay, so this is the string. String is also accessible one by one. So it can be also called iterable and the letter is iterator, accessing one by one item from the word and printing it. Okay, so the loop automatically create an iterator and call the next method on it with each iteration. Okay, so हम समझते हैं iterator और iterable में डिफरेंस। आपने देखा होगा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट ये सारे इटरेबल होते हैं। हमने पहले पढ़ा है पुराने सेशंस में अपने। तो इन्हें इटरेबल कंटेनर्स कहा जाता है और इस कंटेनर के थ्रू आपको वन बाय वन करके जो आइटम मिलता है और जो लेके आता है आइटम को उससे हम बोलते हैं इटरेटर। इन ऑब्जेक्ट्स में एक इटर नाम का मेथड होता है जो वन बाय वन आइटम को रिट्राइव करने में मतलब कि लेके आने के लिए पॉसिबल बनाता है। सो ये इनबिल्ट इटर मेथड को कॉल करता है और आइटम्स को वन बाय वन लेके आता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे यहाँ पर एक टपल बनाया मैंने और फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में ये टपल स्टोर है। तो फ्रूट्स जो है वो मेरा इटरेबल है, इटरेबल कंटेनर जिसके थ्रू मैं वन बाय वन आइटम को इटरेट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे फोर लूप के अंदर मैंने यहाँ लिख लिया फ्रूट्स को और ये जो मेरा फ्रूट वेरिएबल है ये फ्रूट्स नाम के इटरेबल कंटेनर से वन बाय वन एक एक आइटम लेके आ रहा है। ओके, तो वन बाय वन जब ये आइटम लेके आ रहा है वो आइटम फ्रूट में स्टोर हो रहे हैं और इस फ्रूट को हम इटरेटर बोलेंगे। ओके, सो ये इटरेटर इस इटरेबल से वन बाय वन आइटम लेके आ रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है। सेम केस यहाँ पर है। स्ट्रिंग जो होता है
वो भी इटरेबल होता है और उससे भी 1 by 1 करके इटरेट किया जा सकता है। ओके, सो यहाँ पर एप्पल एक स्ट्रिंग है जो वर्ड में है, यहाँ पर लेटर जो है वो इटरेटर है और ये इटरेटर क्या कर रहा है, इस इटरेबल कंटेनर से 1 by 1 आइटम लेके आ रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है। तो फॉर लूप क्या करता है, ऑटोमेटिकली इटरेटर क्रिएट करता है और नेक्स्ट मेथड को इनबिल्ट कॉल करता है जो इटरेशन को लाने के लिए पॉसिबल बनाता है। ओके, सो इसको हम प्रिंट करके देखेंगे। प्रोग्राम को रन करते हैं। सो यू कैन सी व्हेन आई रन द प्रोग्राम, एप्पल, बनाना एंड कोकोनट all is printed through this print statement from this for loop. Okay, you have already seen that in our tuple class and all other classes like list, tuple, dictionary and set. The word apple is also iterated 1 by 1 through this for loop and 1 by 1 letter is printed here because string in python is also an iterable. So हमने जब प्रोग्राम को रन किया, हम देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर लूप के थ्रू यहाँ पे ये तीन आइटम्स प्रिंट हो चुके हैं जो हमारे टपल के अंदर थे और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट्स वाले सेशन में। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रिंग होता है ये भी एक इटरेबल होता है और ये इटरेबल इस फॉर लूप के थ्रू 1 by 1 प्रिंट हुआ जहाँ पे सारे लेटर 1 by 1 एक्सेस हुए। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा कि पाइथन में इटरेटर्स क्या होते हैं और इटरेटर और इटरेबल में क्या डिफरेंस होता है। सो आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू व्हाट इज द इटरेटर इन पाइथन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इटरेटर एंड इटरेबल्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था उसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते। सो वी हैव seen an example above already. We are moving that example here also. So manually calling the iter and next method for an iterable. Okay, so we are not going to use for loop this time. We are calling all the thing manually here. So you can do that like this. You can define a tuple, list, dictionary or set here. So I'm defining a tuple here containing 3 items that is called fruits and this is the iter method you can call. So inside that iter method I am bringing my tuple fruits inside this. Okay, fruits is iterable. Okay, so inside this iter method I should put my iterable, in this case that is the fruit, and it is getting all the iterations here. So in the iteration I'm creating a variable iteration and saving items inside this. So when I try to print the iteration I'm calling the next function. Okay, so we need to call 2 function, iter and next. So iter one time and next function each time I want to print a next item from this tuple or from this iterable. Okay, so next iteration, this is iteration. Okay, I have put this iteration inside the next, so it is printing a value. Next time I'm writing the same line here again and again, so it's 3 time I want to get the value. First time it will get the first value, second time it will get the second value, and third time it will get the third value because of this next function. Okay, because of this next function it's moving 1 by 1 and increasing index 1 by 1 and getting the value. Okay, same for the word apple. Here it is a string and it is also a iterable. So inside iter function I am putting my iterable, in this case this word. Okay, and saving the result inside iteration variable and printing iteration as much as this time. Okay, so this is 1 2 3 4 and 5 letter here inside this word. Okay, so I have to put the print statement with the next function inside containing an iteration, this iteration all the same, but it will print 1 by 1 a p p l e. ओके, इट विल प्रिंट 1 by 1 ऑल द थिंग. ओके, सो मैनुअली आप कॉल कर सकते हो इटर और नेक्स्ट फंक्शन को, इटर और नेक्स्ट मेथड को इटरेबल्स के ऊपर. ओके, सो पिछले एग्जांपल में हमने जैसे देखा वही एग्जांपल को लेते हैं हम, बट यहाँ हम फॉर लूप यूज नहीं करेंगे. तो यहाँ पर हमने एग्जांपल को ले लिया, यहाँ पर हमने सेम टपल बनाया और इसे फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, जो कि अब हमारा इटरेबल है क्योंकि इसके ऊपर 1 by 1 करके इटरेट किया जा सकता है. तो मैंने इटर मेथड को कॉल किया और फ्रूट्स नाम का जो टपल है मेरा, जो कि मेरा इटरेबल है, इसे मैंने इटर मेथड के अंदर रख लिया. अब इसको रखने के बाद ये मुझे एक रिजल्ट रिटर्न करेगा जो मैंने इटरेशन के अंदर सेव कर लिया. अब मैं इसी इटरेशन को नेक्स्ट मेथड के थ्रू कॉल करूंगा बार बार. तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 आइटम है तो मैंने इसको 3 बार कॉल किया. 3 बार कॉल करने के बाद ये सारे कोड सेम है तीनों बार, और ये 1 by 1 सबको एक्सेस करके प्रिंट कर देगा. और इस नेक्स्ट मेथड की वजह से ये अगले इंडेक्स को ऑटोमेटिक एक्सेस करके 1 by 1 सारे आइटम्स को प्रिंट करेगा. तो मैंने यहाँ पे 3 बार लिख लिया. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमने देखा था एप्पल, जो कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग भी एक इटरेबल होता है, तो इसको हमने वर्ड के अंदर रखा और यहाँ पर इटर मेथड के अंदर मैंने अपने इटरेबल जो वर्ड है यहाँ पर
रख लिया। ओके, और इसके बाद इसने जो रिजल्ट रिटर्न किया उसको भी मैंने इटरेशन में सेव कराया, और सेव कराने के बाद हर बार मैं नेक्स्ट मेथड के अंदर कॉल करके सेम वेरिएबल इटरेशन को रख रहा हूँ। इसको रखने के बाद ये सारी लाइंस मेरी सेम है, और ये मैंने 5 बार लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो आइटम है APPLE ये 5 लेटर है टोटल, तो 5 लेटर है, इसलिए मुझे ये प्रिंट स्टेटमेंट 5 बार लिखना पड़ा। बट ये सारे जो कोड है प्रिंट स्टेटमेंट में वो सेम है, लेकिन इस नेक्स्ट मेथड के कारण ये 1 बाय 1 एक एक लेटर को एक्सेस कर पाता है आगे से आगे। ओके, तो प्रोग्राम को रन करते हैं और रिजल्ट को देखते हैं। सो लेट्स रन द प्रोग्राम एंड चेक द रिजल्ट। आपको यहाँ दिख रहा होगा जब मैंने प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पर देखा तो यहाँ पे रिजल्ट मेरे सेम है। अब भी देखो, यहाँ प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पर रिजल्ट अब भी सेम है मेरे पास। ये 3 प्रिंट स्टेटमेंट के कारण ये तीनों वर्ड प्रिंट हो गए, और यहाँ पर 5 प्रिंट स्टेटमेंट के कारण ये 5 लेटर्स प्रिंट हो गए। ओके, सो ऑल द रिजल्ट आर सेम हियर। These 3 word printed because of these 3 print statement, and all the letter inside this word printed because of this 5 print statement. So this is simple using the iter function and next function calling manually for an iterable. What happen if you call more than the item available inside? Okay, so you can see here is the 3 item, and what if you call iterator again 4 times? So it will generate an error. Okay, you can see here after printing the coconut, the last item, it is generating an error because of a stop iteration. We will understand this in today's session itself. Okay, so आप देख सकते हो जब यहाँ पर 3 आइटम है और आप 3 से ज्यादा बार इटरेशन को एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पर एक एरर आती है, और वो एरर क्या करती है, वो एक स्टॉप इटरेशन एरर होती है जो ऑटोमेटिक जनरेट होकर आती है इटरेबल के ऊपर। ओके, और इस स्टॉप इटरेशन के बारे में हम आज ही पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, आई होप ऑल क्लियर until here to you. Moving on next thing. So now we are talking about create an iterator and stopping the iteration. Okay, so we are going to create an iterator from scratch now. Okay, so we need to understand something before creating an iterator manually. So these are the things. To make a class as an iterator, you need to implement the iter and the next method. Okay, like the init method in the classes, the iter method is used for initialization and must return the iterator object itself. So we will do the practical and understand it in more clear way. The next method define the operations to retrieve the next item in the sequence and return that item. To avoid infinite iteration, you can use the stop iteration statement by adding the terminating condition in the next method to raise an error after the specified number of iteration. Okay, अब हम iterator को create करने वाले हैं scratch से, तो iterator को create करना और current iteration को stop करना समझेंगे। ओके, उससे पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं इटरेटर के बारे में। जब हम खुद से क्रिएट करेंगे तो किसी भी क्लास को इटरेटर बनाने के लिए आपको 2 मेथड्स को इंप्लीमेंट करना होगा, जो कि है इटर और नेक्स्ट। ये दोनों मेथड उस क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि इनिट मेथड हुआ था क्लास में प्रेजेंट इनिशियलाइज करने के लिए वैल्यू को, इटर मेथड भी वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा और रिटर्न करेगा इटरेटर ऑब्जेक्ट को। ओके, नेक्स्ट मेथड जो है वहां पर हम अपने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे और 1 बाय 1 सीक्वेंस में आने वाले नेक्स्ट आइटम को कैसे रिट्राइव करेंगे और कैसे उस आइटम को रिटर्न करेंगे, ये चीजें नेक्स्ट मेथड के अंदर डिफाइन करेंगे हम। ओके, इनफाइनाइट इटरेशन को रोकने के लिए हम स्टॉप इटरेशन स्टेटमेंट को काम में लेंगे और जिससे हम टर्मिनेट करेंगे कंडीशन लगा के नेक्स्ट मेथड के अंदर, और वहां से एक एरर को रेज करेंगे जो इनफाइनाइट इटरेशन को होने से रोकेगा किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए एक स्पेसिफिक नंबर के बाद में। ओके, सो हम क्यों रोकेंगे इटरेशन को? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इटरेबल जो होता है वो काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज होता है, वो अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं होता है, वो काउंटेबल होता है। इसलिए हमें किसी ना किसी एक कंडीशन पे इटरेबल को रोकना चाहिए। Okay, so why should we stop the iterable? Because iterable is a countable number of values and we should stop at a specific number by putting the condition. So we are going to create iterable for month number of a year. So we all know there is a 12 month in a year. So we are going to create an iterable for it. I am creating a class called month. So inside the month class, I am using 2 methods, iter and next. So here is my iter method. I am defining iter method by underscore underscore iter, then underscore underscore. We all know the self parameter is always first parameter inside any method inside a class in Python. So we already talked about this in our previous session. So here is the iter method, here is the parameter self for accessing the values, and I'm not getting any extra parameter inside iter. I'm assigning myself here. So I'm taking a number self dot number and I'm assigning it 1 to the number and return the self. Okay, so in the next method I'm putting a condition. I'm checking for self dot number. It means this number is less than equal to 12. So we all know in a year there is 12 month. So I am
putting less than equal to condition, so self number must be less than equal to 12. After this 12, it should stop. So it will go to else condition and it will raise an error. So raise is a keyword inside Python. So it will generate the error. So it will asking to what error should I raise. So it should raise stop iteration error. So stop iteration is a built-in inside Python. So it should call stop iteration to stop the current iteration after number 12. Okay, so what we are doing inside the if condition, so we all know you need to define the operation and retrieve the next item in sequence inside the next function. So we have already stopped it after 12, okay, by putting the condition and current number. So I am taking a variable here, temporary variable current number. I am assigning the self number. What is the number of current iteration inside this? Okay, so self number assigned to current number and I'm increasing self number by 1. Okay, so you all know plus equal to operator. If you don't know, you should check the operators session where I have talked about this in detail. So self dot number, what it is doing, it is increasing number by 1 and again assigning it to self dot number. So first time it's 1, then it's adding 1 inside it, so it became 2 and assigning it again inside self dot number. So self dot number, now the value of self dot number is 2, so it is returning current number. It means before increasing this number, it is saving previous number here and returning that previous number. Okay, so return that number after next function called again. When we write next function, then when the iterator call next function again, so it should check again for it is less than 12 or not. If it is less than equal to 12, then it will iterate again, saving the number 2 inside here, current number. Okay, and increasing by 1, so self number became 3 now and it's returned 2, the previous number it saved. Okay, so in this way this iterator work and I'm creating an object with this class. So months is a object, a variable. So I can put the variable inside iter function. You all know, we have seen the example above. So I'm putting inside iter function, calling the iter and putting the iterable inside this iter. Okay, so this month is an iterable and I'm putting the iterable inside this iter function. It will return a result. I am saving inside the iteration and I'm calling the iteration 12 times here. Okay, so printing the next function and putting the iteration inside it and calling it 12 times. All code are same here. Okay, so when I run the program, it is printing from 1 to 12. Okay, because of this the next function calling this one and it is accessing and doing all the operation and checking the logic, and when it reaches to 12, it is stopping the iteration. Okay, so what if I do one more time, the 13th time? Okay, so if I putting one more time, it should raise an error. As we know, you can see the print next iteration in line 104, it is raising an error because of this stop iteration. Okay, so I hope this is clear. So अब हम practically देखते हैं iterator को create करना. So हम सबको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, जो 12 मंथ होते हैं 12 महीने, उसमें हम iterable को बनाएंगे. So एक क्लास हमने लिया मंथ के नाम से, यहाँ पे डिफाइन किया iter नाम का फंक्शन, जो कि यहाँ जरूरी है. यहाँ दो फंक्शन हमें डिफाइन करने हैं, iter और next. तो हमने iter और next नाम के दो फंक्शन डिफाइन किए. डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पे सेल्फ पैरामीटर, जो कि पहला पैरामीटर होना चाहिए, हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की है अपने पिछले सेशंस में. ओके, सो यहाँ पे इसके अलावा मैं कोई और पैरामीटर नहीं ले रहा हूँ. सेल्फ पैरामीटर के बाद में मैं इसमें एक प्रॉपर्टी असाइन करता हूँ, सेल्फ डॉट नंबर, और कोई और पैरामीटर नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ खुद से असाइन कर रहा हूँ 1. ओके, नंबर नाम की एक प्रॉपर्टी है जिसमें मैंने 1 असाइन किया और रिटर्न कर दिया मैंने सेल्फ को, जो कि सेम ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना था इसमें. ओके, उसके बाद मैंने डिफाइन किया एक नेक्स्ट मेथड. ओके, और नेक्स्ट मेथड में मैंने सबसे पहले कंडीशन चेक कर ली. तो कंडीशन में मैंने चेक किया कि जो नंबर है वो नंबर लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए. ओके, क्योंकि एक साल में केवल 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर सेल्फ डॉट नंबर में वो चीज होनी चाहिए. उसके बाद करंट नंबर नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, जो सेल्फ डॉट नंबर लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए. अगर इससे ज्यादा होता है तो ये एल्स पर आएगा और ये रेज करेगा एक स्टॉप इटरेशन नाम के एरर को. ओके, तो स्टॉप इटरेशन इनबिल्ट है इसमें, और रेज एक इनबिल्ट कीवर्ड है जिसे बाकी कीवर्ड्स की तरह यूज कर रहे हैं. ओके, तो रेज करेगा स्टॉप इटरेशन नाम के एक एरर को, और अगर यहाँ पे पास हो जाता है तो यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज है करंट नंबर, हमने एक वेरिएबल लिया टेम्परेरी वेरिएबल, और यहाँ पे सेल्फ डॉट नंबर, मतलब कि यहाँ पे जो नंबर में सेव है उसको हमने करंट नंबर में रख लिया, असाइन कर लिया. ओके, और सेल्फ डॉट नंबर को 1 से इंक्रीज किया. तो यहाँ पर ये प्लस इक्वल टू जो ऑपरेटर है, इसे हमने ऑपरेटर वाले सेशंस के अंदर अच्छे से पढ़ा है. अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वो सेशन देख सकते हो. बेसिकली ये क्या करता है, ये इस नंबर को ऐड करेगा और उसके बाद वापस इसी वेरिएबल में असाइन कर देगा. सो हमने पहले वाले वैल्यू को यहाँ सेव कर लिया है. सेव करने के बाद में सेल्फ डॉट नंबर को हमने 1 से ऐड किया. तो पहले इसकी वैल्यू 1 थी, अभी 1 से ऐड होने के बाद में इसकी वैल्यू 2 हो गई, और 2 होने के बाद में हमने इसमें असाइन कर दिया सेल्फ डॉट नंबर के अंदर ही उस वैल्यू को. तो अब सेल्फ डॉट नंबर की वैल्यू 2 है. हमने करंट नंबर, जो कि हमारा प्रीवियस नंबर था,
जो हमने इसमें सेव कर रखा था, इसको इंक्रीमेंट करने से पहले उसको हमने रिटर्न कर दिया। तो जो भी यहाँ पे ऑपरेशंस हुए वो यहाँ ऑपरेशंस हम कर सकते हैं और उसके बाद हम फाइनल आइटम को रिटर्न कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के बाद ये दोनों मेथड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट और इटर। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू 2 हो चुकी है। जब नेक्स्ट टाइम कभी भी नेक्स्ट मेथड कॉल होगा तो यहाँ पर चेक करेगा वापस 2 लेस देन इक्वल टू 12। ओके, और करंट नंबर में ये 2 को रख देगा। रखने के बाद ये वापस 1 से इंक्रीमेंट करेगा तो इसका नंबर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 को रिटर्न कर देगा। ओके, इस टाइप से ये जब तक चेक करेगा जितनी बार नेक्स्ट कॉल होगा और यहाँ पर 12 से ज्यादा होते ही ये एरर जनरेट कर देगा। सो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और ये मंथ्स नाम के ऑब्जेक्ट में हमने रख लिया। तो ये मंथ्स नाम का ऑब्जेक्ट हमारा इटरेबल है जिसको हमने इटर फंक्शन के अंदर रखा। इटर फंक्शन में हमने मंथ्स नाम के ऑब्जेक्ट को रख के और यहाँ पे जो रिजल्ट आया उसको इटरेशन में सेव कर लिया। अब हमने इस इटरेशन को नेक्स्ट के अंदर कॉल किया और 1 बाय 1 करके हमने 12 टाइम कॉल किया। ये सारे प्रिंट स्टेटमेंट सेम है जो नेक्स्ट मेथड के अंदर इटरेशन को कंटेन किए हुए हैं। तो हमने 12 टाइम कॉल किया इनको। 12 टाइम कॉल करने के बाद में हम रन करके चेक करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से लेकर 12 तक प्रिंट हो चुका है नंबर। ओके, और प्रिंट होने के बाद में यहाँ पे स्टॉप हो गया एग्जीक्यूशन। अगर हम 1 मोर टाइम कॉल करते हैं, जैसे 13 टाइम यहाँ पे कॉल कर दिया, तो क्या होगा, तब एक एरर जनरेट हो गया है। यहाँ पर देखो लाइन नंबर 104, ये 104 में हमने 13 टाइम कॉल किया इसको। तो ये इस बार यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे रेज किया स्टॉप इटरेशन को, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। इस स्टॉप इटरेशन के कारण ये एरर यहाँ पे कैच हो गई। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा यहाँ तक। सो हमने यहाँ पे इटरेटर मैन्युअली क्रिएट किया और उसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप किया एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, और इस तरह से आप मैन्युअली इटरेटर क्रिएट कर सकते हो। सो वी हैव क्रिएटेड एन इटरेटर हियर एंड मैन्युअली स्टॉप द एग्जीक्यूशन बाय दिस स्टॉप एग्जीक्यूशन, एंड इन दिस वे यू कैन क्रिएट एन इटरेटर योरसेल्फ। सो आई होप दिस ऑल क्लियर टू यू। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। सो गाइज, आज का सेशन लाइव नहीं था। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप कम्युनिटी के अंदर उसे पूछ सकते हो। टुडे सेशन वाज नॉट लाइव, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क इन द कम्युनिटी ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम। If you have not joined yet, I will provide the link inside this video description. So कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिंक मैं आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन नहीं हो तो। अगर आप वीडियो से कुछ भी सीख पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो पाइथन प्रोग्रामिंग को सीखना चाहते हैं। सो इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम द वीडियो you can subscribe the channel, like the video and share with those people who want to learn the Python for free. Thanks for watching. Good night.